students, very good afternoon to all. Again we are going to study about the numericals of physics sound chapter ICC board. Now here the sound is the form of energy which propagates through a medium, and material medium is required for the propagation of sound. If there is no material medium, means vacuum. In vacuum sound does not travel. In air or we can say water or we can say solids, sound travel with a different speed. In case of metal, sound travel with the greatest speed because particles are very close to each other and they are having good elasticity. So propagation of any wave, we require elasticity in the medium, low friction and inertia in the medium. Inertia give energy to propagate and inertia should be in the medium, and we can say it should be good elastic. So in air the velocity is inversely proportional to velocity of sound, inversely proportional to density of air. If the density of air is low, we can say the sound travel faster. If the density is high, the sound will be low. Now in case of air, due to low elasticity, density is the factor. But in case of solids, the density factor is greatest in solids because molecules are very close. But even though it is high density, sound travel fastest in solids because their elasticity is too high. But in case of air, the elasticity is very low, and here the velocity is very high. So due to elastic medium, that sound travel fastest. In liquid, sound travel little slower than solid, but too much fast in as compared to the air. Now sound when travels and strikes a medium, it should be rigid medium and the distance should be greater than 17 meter or 17.2 meter. The echo is heard, means the repetition of sound after 1/10 second or 0.1 second. The repetition of sound takes place, we can say it is called echo. And for echo, the distance traveled is 2D, and here we are going to study the question based on echo in next one question, and this is the question based of sound travels in the liquid or sound travel in the air. Here question is the sound produced on the surface of the lake takes 4.5 seconds to reach a boatman. Means somewhere D, at a distance D, the boatman standing, and sound travels in air. It takes 4.5 seconds to reach because in air the sound is slow. How much time taken to reach inside the water at the same distance? If we see the sound travels through a water, we can say we need at the same distance, means the boatman is at same distance. If the velocity of sound in water is 4.5 times of the air, means if we can say if air velocity is v, then we can say here va is where it is high. Velocity of sound in air, sound in water is 4.5 times of the velocity in air. This is the formula we need to use, and distance is same. Okay, so time in air this much, and time in water we have to find out. Velocity in the air is given, distance in air is equal to velocity into time, distance in water is equal to velocity into time. If the distance is same, we will equate them. So VA/TA is equal to VW/TW. Now in place of VW, we can write 4.5 VA. In place of VW, we have put 4.5 VA.
VA will be cancelled out, you will get 4.5, 4.5 is cancelled out, and you will get 1 second. So time taken by sound waves to reach boatman at the same distance is 1 second. Simple. From this relation you come to know. It is 4.5 times na. So if 4.5 second is reaching in air, you will get 1 second because this is the speed of sound. Okay, because distance is same. Now in second case, we are going to study about the echo. So what happened? A boy is standing and he clapped like this. Tuck. He heard echo sound. And then again echo sound. Then again echo sound. Then again echo sound. So a boy stands 60 meter from a wall. If some wall is there, a tall wall is there, and 60 meter from the wall, a boy is standing and he is clapping. He claps, and 1/10 second the sound minimum that is for the echo. Now here the distance is 60 meter and clap by continuing clap every time. जैसे उसको इको सुनाई आता फिर क्लैप करता है, फिर इको सुनाई आता फिर क्लैप करता है. दिस थर्ड पर्सन, ए बॉय स्टैंडिंग, उसने देखा कि अनदर बॉय स्टैंडिंग, उसने बोला कि 1 क्लैप के बाद 51 क्लैप, तो टोटल क्लैप कितनी हो गई? 50 क्लैप. टोटल 50 क्लैप हुई तो 18 सेकेंड लगे, यानी 51 क्लैप पे उसको 18 सेकेंड लगे. तो यानी कि इसके बीच में एक इको आया होगा, इसमें दूसरा इको आया होगा, इसमें तीसरा इको आया होगा. समझिए. तो सक्सेसिव 50 क्लैप में कितने इको आए, कितने इको में कितने बार सेकंड लगा? 18 सेकंड. तो 1 जो क्लैप का सेट है उसमें कितना टाइम लगेगा? 18/50. इसका मतलब टाइम टेकन फॉर इको के लिए कितना टाइम लग रहा है? दैट इज 18/50. यानी एक क्लैप के बीच में कितना टाइम लग रहा है? इतना टाइम लग रहा है. 18/50. वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. यानी यहां से यहां तक जाता होगा, वापस आता होगा. d प्लस डी 2d. d दिया हुआ 60, 2 इंटू 60 करेंगे, 18/50 को ऊपर ले आएंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट आंसर 333 मीटर पर सेकेंड. तो साउंड जो होता है ट्रेवल करने के लिए गुड इलास्टिसिटी होनी चाहिए मीडियम के अंदर. अगर अच्छी इलास्टिसिटी रहेगी तो साउंड बहुत तेजी से ट्रेवल करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो हमारा न्यूटन था उसने बोला वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर बाय डेंसिटी. समझिए. तो उस समय जो प्रेशर रहेगा एयर का वो लगभग 1.0 इंटू 10⁵ पास्कल रहता है, और डेंसिटी ऑफ एयर कोई 1.0297 समथिंग कुछ रहता है. वो पुट करते हैं तो आपका आंसर आता है लगभग 283 समथिंग आता है मीटर पर सेकेंड. तो जब ये न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने ये फॉर्मूला डाला था, एंड हियर द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी. उसने क्या बोला था? ये आइसोथर्मल इलास्टिसिटी. आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जो कंप्रेशन बनता होगा तो वो क्या करता है? सराउंडिंग को दे देता है, क्योंकि हीट जनरेट हो गई तो ये सराउंडिंग को हीट दे देगा. और जैसे रेयर फ्रैक्शन बनेगा, रेयर फ्रैक्शन मतलब FACTION है वो. रेयर फ्रैक्शन बनेगा तो हीट में कमी होगी, सराउंडिंग से ले लेगा, तो टेम्परेचर क्या रहा? कांस्टेंट. तो डेल्टा टी जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है. तो न्यूटन ने गलती कर दी थी और उसने आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को प्रेशर मान लिया था. आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर. और इस तरह से उसका जो आंसर आया था वो जो एक वैल्यू होती है 332 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार, उससे कम मिला स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में. फिर उसके बाद लाप्लास आया था. लाप्लास बोलता है कि जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं. यानी कि एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इतना फास्ट बनता होगा, क्योंकि अगर 332 मीटर पर सेकेंड की अगर उसकी रफ्तार है, 332 मीटर पर सेकेंड की अगर उसकी रफ्तार है, तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन इतने फास्ट बनते होंगे कि हीट जनरेट होती होगी, वही रेयरफैक्शन यूज कर लेता होगा. तो टोटल हीट इक्वल्स टू 0, चेंज इन हीट इक्वल्स टू 0 होता है. वो कहलाता है एडियाबैटिक प्रोसेस होता है. एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? क्विक प्रोसेस होता है, क्विक. और बाहर ना हीट जा पाती है, ना बाहर से हीट अंदर आ पाती है.
तो वो एडियाबेटिक फैक्टर के लिए गामा लगा देते हैं। गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक होती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक होती है, इसका रेशियो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और वो होता है गामा। एंड गामा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट। और डायटोमिक गैस के लिए, जैसे हमारी जो भी गैस होती है O2, N2, है ना, ये सब डायटोमिक होती है। ये गैस की वैल्यू होती है 1.41। तो जब इसने गामा P अपॉन डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करा, तब उसको पता चला कि जो गामा की वैल्यू 1.41 है और बाकी सब वैल्यूज उसने वैसी पुट करी, तो लगभग 332.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार आ गई, जो कि क्लोजेस्ट वैल्यू थी। और इस तरह से लैप्लास सक्सेस हो गया था। याद रखो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। ये थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होता है और इसमें कोई भी सिस्टम जो होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और बहुत स्लो रहता है, काय में, आइसोथर्मल में। और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, क्विक प्रोसेस होता है और उसका बाहर से सराउंडिंग कोई संबंध नहीं होता। तो जब आप देखोगे साइकिल का जो ट्यूब है या ट्रक का जो ट्यूब है, टायर का जो ट्यूब होता है, उसका आप वॉल निकाल दो, वहां पे उंगली रखोगे ना, उस हवा में आपको ठंडी लगेगी, क्योंकि वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो जाता है गैस का। तो जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो बाहर से तो हीट ले नहीं पाएगी, और जब गैस एक्सपेंड होता है तो इंटरनल एनर्जी लॉस होता है और टेम्परेचर फॉल हो जाता है और इस तरह से अपन को ठंडा लगता है। तो कोई पूछेगा कि जब कोई भी गैस एकदम से एक्सपेंड होती है तो कूलिंग इफेक्ट क्यों देती है, तो आप बोल सकते हो कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन जो होता है उसके अंदर गैस जब एक्सपेंड होगी तो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उसको उसका इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, क्विक प्रोसेस होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। तो आप ये सब बातें ध्यान रखना कि मीडियम में अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए, मीडियम के अंदर इनर्शिया होना चाहिए, मीडियम के अंदर फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, कम फ्रिक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, वैक्यूम में ऐसा नहीं होता। और साउंड जो होता है ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन करता है। तो रिफ्लेक्शन के ऊपर एक ऐसा था कि एक शीट है और ये एक वर्टिकल लाइन खींच लो, तो जब साउंड लाइट जो होती है, यहाँ पे अपन ने पेंट कर दिया सिल्वर पेंट, अगर लाइट है तो उतने एंगल बना के लाइट चले जाएगी। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और उसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल एक काल्पनिक लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है, इसको इंसिडेंट एंगल बोलेंगे इसको। ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक पाइप लगा देंगे, एक पाइप रहेगा, हॉलो पाइप रहेगा, और यहाँ पर अपन एक क्लॉक लगा देंगे, एक साउंड का सोर्स रख देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक पाइप लेंगे। तो जब हम देखेंगे कि पाइप की पोजीशन चेंज करेंगे सुनने वाली, तो आप देखेंगे कि इन पोजीशंस में उसका साउंड तेज नहीं आएगा, इसी पोजीशन पे आपको तेज साउंड देगा। तो साउंड क्या है, अच्छा रिफ्लेक्शन करता है। साउंड किसी भी मीडियम से टकरा के रिफ्लेक्ट हो सकता है। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो, अगर मान लो कहीं से लाइट आ रही है, और यहाँ पे एक दीवार खड़े कर दे अपन लोग, तो लाइट जो होती है वो दीवार से टकरा के नीचे की ओर मुड़ जाएगी। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है बहुत छोटी होती है, साउंड की काफी बड़ी होती है उसके कंपैरिजन में। तो जो डिफ्रैक्टिंग एंगल होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो साउंड जो होता है वो आप दीवार लगा दो, उससे चिपक जाओ आप, तब भी वो साउंड मुड़ जाएगा। तो उसका डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, ज्यादा मुड़ जाता है साउंड। इसलिए आप ये दीवार के ऊपर अगर लाइट आ रही है और आप यूं पे खड़े हो जाओगे, तब भी साउंड मुड़ के यूं हो जाएगा, लेकिन लाइट मुड़ के नहीं आएगा, लाइट कम मुड़ता है। और इस तरह से डिफ्रैक्शन जो होता है वो लाइट का कम होता है और साउंड का ज्यादा होता है। तो ये है साउंड की कंडीशन। आपको मैंने ये न्यूमेरिकल भी समझा दिया, है ना। तो ये बड़ा अच्छे न्यूमेरिकल है, यानी कि ये बहुत टफ भी बढ़ जाता है बच्चों के लिए। इसमें टाइम निकालना इंपॉर्टेंट होता है कि 50 क्लैप में 18 सेकंड लग रहा है, तो एक क्लैप में कितना लगेगा, एंड दैट विल बी द टाइम ऑफ इको, यानी कितने टाइम फॉर ए इको, एक इको प्रोड्यूस होने के लिए कितना टाइम वो ले रहा है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।